Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 10 Science Chapter 2 Acids, Base and Salts Concept Overview. In this session we will study brief details about bases, properties of base, usage of bases, difference between acids and base, difference between base and alkali, and physical tests to identify an acid or a base. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the topic. तो आज हम बेस के बारे में जानेंगे, उसकी बेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में एसिड के बारे में बताया है, आप चैनल से वहां देख सकते हैं। तो बेस क्या होता है? बेस मेनली वो सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट बीटर होता है, कड़वा होता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो बेसेज आर दो सब्सटेंस which have bitter taste. They turn red litmus to blue. Those bases which are soluble in water are called alkali. बेस जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। जो सारे के सारे बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसको अल्कली बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH whole twice magnesium hydroxide, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर बेस। मतलब कि हम यहाँ देख रहे हैं OH सब में OH है, मतलब OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो बेस वो सब्सटेंस है जो जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या हाइड्रोक्साइड आयन देता है। That is a base. A base is a substance which dissolve in water to produce hydroxide ion in solution. NaOH, KOH, MgOH whole twice, NH4OH सब में OH है। OH means hydroxide ion. When dissolve in water मतलब aqueous solution में ये हाइड्रोक्साइड आयन जो देता है that is a base. जैसे कि NH4OH जब टूटता है सॉल्यूशन तो क्या है NH4 प्लस अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, NaOH Na plus aqueous OH minus ion, that is a hydroxide. When the solution of base is diluted by mixing water to it, then the concentration of hydroxide ion decreases. जो बेस सॉल्यूशन है बेस का, हम अगर उसको डाइल्यूट करते हैं और वाटर मिक्स करते हैं तो जो हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या डिक्रीज होता जाता है। तो बेस आर दैट सब्सटेंस which have bitter taste, red litmus change blue, when dissolved in water produce hydroxide ion. Strong base क्या होता है? A base which completely ionize in water and produce large amount of hydroxide ion. बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है जब वो सॉल्यूशन वाटर में डिजॉल्व होता है तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, मतलब
मतलब कि वो मिक्सअप कंप्लीटली टूटता है, जैसे कि NOH, COH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। वीक बेस वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर में, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अ बेस which partially ionizes in water and produce a small amount of hydroxide ions are known as weak base. As for example, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, all are weak base. तो जो completely ionized हो जाता है, large amount of hydroxide ion देता है, प्रोड्यूस करता है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। जो पार्शियली आयनाइज होता है वाटर में, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, वो वीक बेस है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो जो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? bitter taste, they have bitter taste and slippery texture, soap like, जैसे सोप चिकना, स्लिपरी मतलब चिकनाहट, छूट जाए, जैसे bitter टेस्ट होता है। they turn red litmus blue, they conduct electricity, good conductor of electricity हो। the pH value corresponding to bases are always greater than 7, बेस की जो pH होती है हमेशा 7 से ज्यादा होती है। 7 to 14 जो बेस का रेंज है, 7 to 14, pH का स्केल है 0 to 14, 7 to 14 बेस, 0 to 7 एसिड्स एंड 7 न्यूट्रल। तो बेस की प्रॉपर्टीज: बिटर टेस्ट, स्लिपरी टेक्सचर, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, pH value correspond to base are always greater than 7. Chemical properties: when they react with some metals to form hydrogen gas. बेस जब कुछ मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे कि NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, मोल्टेन मेटल है। जब आपस में रिएक्ट होता है तो क्या सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, Na2ZnO2, दैट इज अ सोडियम जिंकेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। A more reactive metal displace the less reactive metal from its base. अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा बेस से, जैसे कि 2Na plus MgOH वोल्टेज, दैट गिव्स, अब क्या है, सोडियम, Na मीन्स सोडियम, सोडियम मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, देन क्या करेगा, सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब रिप्लेस करेगा NaOH प्लस Mg, अगर हम बैलेंस करेंगे तो 2NaOH प्लस Mg, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो 1 यहाँ हो गया, मतलब 2NaOH प्लस Mg। नेक्स्ट, बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, हमने एसिड के में भी पढ़ा है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो साल्ट और वाटर बनता है, मतलब कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। जैसे कि एसिड 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, that gives magnesium chloride, a salt and water, H2O. H2SO4 sulfuric acid plus magnesium oxide, that gives magnesium sulfate plus water, so that is a salt. So base when react with acid form salt and water.
Base react with non-metal oxide also from salt and water. Non-metal जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड नॉन मेटल है, CO2 तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, नॉन मेटल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट प्लस वाटर, तो बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड, calcium hydroxide is base, when react that gives calcium carbonate plus water H2O. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। बेस की क्या यूजेज हैं, यूजेज ऑफ बेस, तो सब सोप और पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड पेपर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोप और पेपर की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। NaOH is also used in manufacturing of rayon। रेयान क्या है, रेयान एक जो हम रेयान के कपड़े पहनते हैं, तो रेयान की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में भी NaOH की यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड also known as silk lime is used to manufacturing bleaching powder। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is base which is used for the manufacturing of bleaching powder, मतलब क्लीनिंग के लिए यूज होता है। ड्राई मिक्सेज used in painting or decoration are made with the help of calcium hydroxide। जो हम पेंटिंग और उसके लिए यूज करते हैं उसमें कैल्शियम ड्राई मिक्स यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इज कॉमनली यूज्ड एज लैक्सेटिव। इट ऑल्सो रिड्यूस एनी एक्सेस एसिडिटी इन ह्यूमन स्टोमक एंड इज देयरफॉर यूज्ड एज एंटासिड। क्या होता है जब ह्यूमन स्टोमक में क्या एसिडिटी कैसे होता है, जब ओवर हीटिंग आदमी कर लेता है तो आदमी को एसिडिटी हो जाता है, क्योंकि स्टोमक में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब एक्सेस एसिड हो जाता है तो एक्सेस एसिड को फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड की यूज करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको रिड्यूस करता है, यूज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजेंट यूज इन लेबोरेटरी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजेंट है। Any excess acidity in soils can be neutralized by employing silk lime। अगर हमारे सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिल्क लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो बेस की बहुत ज़्यादा यूज है, सोप पेपर इंडस्ट्री से लेके हम पेंटिंग, घर में जो पेंटिंग और डेकोरेशन होता है सारे चीज़ों में बेसिस की यूज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। बेस और एसिड और बेस में क्या मेनली डिफरेंस है, तो एसिड क्या होता है, सो टेस्ट होता है, बेस का बीटा टेस्ट होता है। एसिड वाटर में जब डिजल्व होता है तो हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है, बेस हाइड्रोक्सिल आयन
OH माइनस आयन देता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एसिड का पीएच रेंज 1 to 7 मतलब 0 to 7, 1 to 7, और बेस का पीएच रेंज 7 to 14। तो एसिड गिव ऑफ हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, whereas base give off hydroxyl ion when dissolved in water. Acid turns blue color litmus paper into red, मतलब एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं। दैट कंफर्म दैट की दैट इज एसिड। व्हेन लिटमस टेस्ट हम जब करते हैं तो क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को अगर जो सॉल्यूशन है रेड कर देता है, दैट इज मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है। whereas it turns red litmus paper to blue base. Acid sour taste, whereas bases bitter taste, soapy to touch, that is slippery texture. pH value ranges from 1 to 7 in acids, whereas base pH range from 7 to 14. Example of acids: HCl hydrochloric acid, sulfuric acid. Example of bases: NaOH sodium hydroxide, KOH potassium hydroxide. So that is the main difference between acid and base. नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली। बेस और अल्कली में मेनली क्या डिफरेंस है? अल्कली बेस वो होता है जो वाटर में डिजॉल्व भी होता है, नहीं भी होता है। अल्कली जो बेस वाटर में डिजॉल्व होता है, दैट इज अल्कली। तो बेस इज डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सारे बेसेज दैट डिजॉल्व इन वाटर आर अल्कली। जो बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं है, मैंने अभी बताया कि सारे के सारे बेस जैसे NOH QH है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, दैट बेस आर अल्कली। ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, ऑल अल्कलीज आर बेसेज। जो भी अल्कली होगा वो बेस होगा, लेकिन जो बेस है वो सारे के सारे अल्कली नहीं, क्योंकि वाटर में सारे बेस डिजॉल्व नहीं होते। इट न्यूट्रलाइज एसिड। बेस जो होते हैं वो एसिड को, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होता है तो क्या न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज करके साल्ट और वाटर बनाता है। अल्कली इट रिलीज हाइड्रोक्सिल एंड एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। जो अल्कली होता है वो क्या करेगा, जब वो जो बेस वाटर में डिजॉल्व होता है, तो जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो बेस क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब वो OH आयन। तो जो OH आयन देगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, दैट इज अ अल्कली। एग्जाम्पल ऑफ बेस इज जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, ये वाटर में डिजॉल्व है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व नहीं है। जिंक हाइड्रोक्साइड ये भी कॉपर में वाटर में डिजॉल्व नहीं है। तो जो सारे बेस होते हैं वो सारे के सारे वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन जो बेस वाटर में डिजॉल्व होते हैं, दैट इज अल्कली। बेस का मुख्य काम बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, अल्कली हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं।
फिजिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एन एसिड और अ बेस। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। हमें कोई सब्सटेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये एसिड है या बेस। तो फिजिकल टेस्ट हम क्या करें? फिजिकल टेस्ट मेनली दो पॉसिबल फिजिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एन एसिड और बेस। एक तो टेस्ट है, दूसरा इंडिकेटर्स है। तो जो टेस्ट है, एसिड का टेस्ट क्या होता है? एसिड का टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, वेरेज बेस टेस्ट बीटर होता है, कड़वा होता है। बट क्या है, एसिड और बेस सबको हम टेस्ट करें, ये बहुत प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि क्या एसिड एसिड क्रोसिव होता है। हो सकता है कि जो एसिड बेस है वो कंटामिनेटेड हो किसी और सॉल्यूशन से, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग जो है जैसे कि मिनरल एसिड्स है, मिनरल एसिड को हम टंग टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये टेस्ट प्रैक्टिस में हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, शॉर्ट टेस्ट होता है एसिड का और बेस का बीटा टेस्ट होता है, लेकिन ड्यू टू द हो सकता है कि corrosive in nature and contaminated with other substances, not possible to test एसिड और बेस, मतलब टंग टेस्ट हम नहीं कर सकते। जैसे कि फ्लेवर ऑफ कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारे क्या है, वीक एसिड्स हैं, इनको हम टंग टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे खट्टा होगा, ऑल आर सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, दिस कंपाउंड्स हैव सोर फ्लेवर। इनके जो फ्लेवर भी होते हैं, जैसे आप लेमन जूस को स्मेल भी लेंगे तो खट्टापन जैसा आएगा, जो स्मेल होगा सोर होगा। तो वीक एसिड्स हैं उनको टेस्ट, लेकिन वही मैंने कहा ना मिनरल एसिड्स है, उनको हम टेस्ट करके तो दैट इज एन प्रैक्टिस में नहीं हम बता सकते कि टेस्ट करके कि ये सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है? इंडिकेटर, जिससे कि हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो फर्स्ट तो लिटमस पेपर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, मेनली कलर और ऑर्डर। जब उसके कोई एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है तो चेंज हो जाता है। जो लिटमस पेपर है, मतलब लिटमस पेपर जो है नेचुरल इंडिकेटर होता है, वेरेज मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, ये सारे सिंथेटिक केमिकल इंडिकेटर हैं। तो इंडिकेटर मेनली chemical substance. A indicator is a chemical substance which shows a change in its physical properties, mainly color or odor, when brought in contact with an acid or a base. इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है, मेनली कलर और ऑर्डर बताता है जब एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है। लिटमस इज a natural indicator, whereas methyl orange and naphthalene are synthetic indicator. तब इनके क्या इफेक्ट होते हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि लिटमस का एसिड पे क्या चेंजेज आता है, इंडिकेटर का बेस पे क्या चेंज है, एसिड पे क्या चेंज है, लिटमस का एसिड पे और बेस पे क्या चेंजेज होता है, कि हम कैसे बताएं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तभी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। जैसे कि इंडिकेटर रेड लिटमस पेपर, अगर हम रेड लिटमस पेपर, मतलब स्ट्रिप में आता है इसीलिए हम बार बार पेपर बोल रहे हैं, मतलब रेड लिटमस जो इंडिकेटर है वो क्या करता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, रेड का रेड ही रहता है। अगर न्यूट्रल सब्सटेंस है तब भी वो रेड ही रहेगा, कोई चेंज रेड लिटमस में नहीं आएगा। और अगर बेसिक सब्सटेंस है तो रेड लिटमस चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो अगर एसिड और बेस हमें दिया हुआ है और बताना है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो सबसे पहले हमारे पास रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। अगर एसिड होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, वो कलर रेड का रेड ही रहेगा। अगर बेस है
तो उसका कलर रेड से चेंज होके ब्लू हो जाएगा। वैसे ही ब्लू लिटमस पेपर जो अगर एसिड के साथ हम टेस्ट कांटेक्ट करते हैं तो कलर चेंज टू रेड, दैट कंफर्म्स दैट सब्सटेंस इज एसिड, मतलब कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है। अगर न्यूट्रल है तो ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर बेसिक है मतलब बेस है तब भी कोई चेंज नहीं, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अब हम अगर फिनोफ्थलीन का यूज करते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें हम फिनोफ्थलीन डालते हैं, मान लीजिए इंडिकेटर के रूप में, इंडिकेटर मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डालते हैं, ड्रॉप कुछ ड्रॉप डालते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर चेंजेज आता है दैट इज एसिड और या बेस। तो अगर एसिड सॉल्यूशन में हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालते हैं तो क्या होगा, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूट्रल में भी कलरलेस ही देगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। अगर बेस है, अगर कोई सॉल्यूशन बेस है उसमें हम फिनोफ्थलीन डालते हैं तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, कलर पिंक हो जाएगा। तो जब हम इसी को हम बोलते हैं कि अभी न्यूट्रलाइज हो गया। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होता है तो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाता है। वहीं अगर इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं तो अगर एसिड में हम डालते हैं, एसिड सॉल्यूशन है तो कलर रेड हो जाएगा, न्यूट्रल में ऑरेंज रहता है। अगर बेसिक सॉल्यूशन है उसमें हम मिथाइल इंडिकेटर का यूज करते हैं तो कलर चेंज होके येलो हो जाता है, दैट कंफर्म दैट बेस दैट एसिड। तो हम इंडिकेटर के थ्रू फिजिकली हम बता सकते हैं, विदाउट केमिकल टेस्ट हम इंडिकेटर से बता सकते हैं कि ये सब जो सॉल्यूशन है या सब्सटेंस है एसिड है या बेस है। फिजिकल टेस्ट क्या होता है, इनिशियल हमें बताने के लिए होता है। केमिकल टेस्ट के लिए तो आपको लेबोरेटरी चाहिए, केमिकल्स चाहिए, फिर हम आप चेक करके बताएंगे कि एसिड है, रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे लिटमस पेपर सबसे इजीएस्ट मेथड है कंफर्म करने के लिए कि दैट इज एसिड और अ बेस। उसके अलावा अगर कोई केमिकल यूज तो फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हैं, जिससे हम कुछ ड्रॉप से हम पता लगाएंगे कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। नेक्स्ट, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। अल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ऑर्डर। तो दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड अल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो अल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि उसका ऑर्डर या स्मेल एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। जैसे कि ओनियन वेनिला एक्सट्रैक्ट, ओनियन और वेनिला का जो एक्सट्रैक्ट है वो एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों में उनका स्मेल चेंज हो जाता है। तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो अल्फैक्टरी हो सकता है बहुत लोगों को स्मेल या ऑर्डर से ना पता चले, तो जो हम फिजिकल टेस्ट मेनली लिटमस जो है रेड और ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि दैट आर एसिड्स और बेस। क्योंकि टेस्ट भी सबका पॉसिबल नहीं है, टंग टेस्ट लेना, और अल्फैक्टरी भी मतलब स्मेल और ऑर्डर को भी कैच करना इजी नहीं होता है। लेकिन हम लिटमस पेपर से या इंडिकेटर के यूज करके हम बता सकते हैं कि दैट सब्सटेंस इज एसिड और बेस। दैट इज अ फिजिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई दैट सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। तो आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, और जितनी बार आप अपने से रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि हमने जो बोला
आपने सुना, और आप जब एक दो बार और रिवाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। तो साइंस वैसे भी रिवीजन का ही चीज़ है। आप जब तक रिवाइज करते रहेंगे तब तक आपके दिमाग में बना रहेगा। जैसे आप रिवीजन छोड़ देते हैं तो वो भी दिमाग से हटता जाता है। तो इस सेशन को यहीं समझ, नेक्स्ट में इससे आगे पढ़ेंगे। पीएच क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, पीएच की एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट है, तो नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।